Okay, so good morning to all. Good morning, sir. Okay, तो चलिए। नया सेमेस्टर स्टार्ट हो गया, पुराना अभी पूरा नहीं हुआ। सर ये क्लासेस 31 से स्टार्ट थी ना? किसने कहा तुम टाइम टेबल नहीं मिला? नहीं सर, टाइम टेबल तो मिला है, पर जैसे गुलाब सर बोल रहे थे कि 31 को क्लास लेंगे वो, तो 31 वो से। वो 31 से लेंगे, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि टाइम आपका टाइम टेबल 31 से है। सर ईआर पे भी 31 की डेट थी, तो इसलिए इसलिए पूछ रहा था सर मैं। ईआरपी पे 31 कहाँ लिखा है? लिखा है? अगर ईआरपी पे 31 है तो टाइम टेबल 27 से क्यों सेंड किया? तो वही तो पूछ रहे हैं सर हम। हाँ। कोई दिक्कत नहीं, ऐसा कुछ वो नहीं है कि 31 भी पास नहीं है। 31 से हो जाए, क्योंकि फ्राइडे को तो शायद है नहीं, अपनी क्लास की है फ्राइडे को। नहीं सर, फ्राइडे को नहीं है आपकी। फ्राइडे को मेरी तो है ही नहीं, तो इस वीक तो आज ही है मतलब। आज ही है सर आपकी क्लास। हाँ, तो कोई दिक्कत नहीं, आज एक सर जस्ट एक आपने इंट्रोडक्शन हो जाएगा। सर आपने कल कल भी क्लास ली थी शायद। कल आपने भेजा था लिंक। कल क्लास कहाँ ली? कल आपने लिंक भेजा था सर मेल पे, पर हम ज्वाइन नहीं कर पाए सर उस पर। अरे वो ये वाला लिंक तो लिंक मैंने है। लिंक तो अच्छा, आज इसलिए के लिए भेजा भेजा है कि था। आपको इस पे ज्वाइन करना है। ठीक है सर, ठीक। जब भी ठीक क्लास होगी तब उसको, उसी लिंक को आप कहीं एक स्पेशल फोल्डर बना लो कि वहाँ पे इस सब्जेक्ट की ये लिंक रहेगी, या डायरेक्ट आप उस पर गूगल क्लास पे जाएंगे तो हमेशा आपको टाइम अकॉर्डिंग इसी पे क्लिक करना है, जैसे ईएसएम है। करते थे। ओके सर, अंडरस्टूड। ओके, सो आई थिंक 10 students are there. Many of you are absent, but ठीक है, फर्स्ट क्लास है। ओके, सो ये जो सब्जेक्ट है इसके बारे में कुछ देखा आपने? सब्जेक्ट का नाम काफी बड़ा है, बट उसके जो टर्म्स हैं उसके बारे में कुछ जानते हो? मशीनरी फॉल्ट डायग्नोसिस एंड सिग्नल प्रोसेसिंग। Machinery, you know, okay, what is machine? And diagnostics, you should know the diagnostics. And signal processing, signal, you know, but in depth, I think in some of your subject in BTech, maybe you are familiar with the signals, but again, we will think about this in somewhat for our applications, like in vibrations, how to deal with signals. Otherwise, signals are something, they carry the information, like in other forms also. Okay, but we will deal with the signals of vibrations mainly, and processing. Okay, so processing of the signals means when you capture the signal, then suppose we want to in some other form, so that we can understand what is the phenomena inside the machine, so we have to do some processing work on the signals. Okay, so there are some advanced techniques also, that also we will learn how to process the signal. Okay, and find out the outcomes of the vibration signal mainly.
So this subject, machinery fault diagnosis, is basically a broad, we can say, a maintenance subject in broad way, but the theory behind this is there are many techniques, okay, to diagnose the fault, but out of these, the vibration technique is the most powerful technique. So mainly we will focus on the vibration analysis of the machines. Okay, so obviously, if we talk about the vibration analysis, that means we should have some small knowledge about the vibration. Okay, some basic concept of the vibration. Generally, in mechanical vibration, uh, we model some system, okay, and derive some differential equations, find the natural frequencies, and the response means the vibration amplitudes like y equal to a sine omega t, something like that. So in that case, we will discuss this time domain. Now the picture is not clear if we do some mathematical modelings of a particular system, because in mathematical model we assume that it is a simple harmonic motions and this is something like this. Okay, so we can easily identify this signal as some phase difference is phi, and this is sinusoidal, this is cosine functions like this. But the main part of the random vibration is missed, okay, in the mechanical vibration and UG courses generally, or in PG also. But in more details or in industry oriented, okay, they capture generally the random vibrations of the machine. So generally this fault diagnosis is about the random vibrations, okay, random vibrations of the machine. So only the response, okay, response with respect to time, but it is in random nature. So we will discuss this, how the different machines have a random vibration or something a periodic vibration or harmonic vibrations like this type of. We will discuss all these things. Uh, I want to show you the syllabus of this. Okay. Okay, so this is the syllabus: machinery, fault diagnostics, and signal processing. Okay, so initially we have designed this, and after your some feedback, okay, about these subjects, okay, we will refine this in the next meeting. But we have taken the maximum content of this subject from the IIT Kanpur. Okay, so in IIT Kanpur, there is a Mohanty. Okay, I think I have mentioned the book also here. This is Machinery Condition Monitoring Principles and Practice, A.R. Mohanty.
Okay, so this book mainly the Mohanty, Dr. Professor Mohanty, I think professor is there. So he also added some NPTEL lectures. Okay, so you can search on YouTube or NPTEL website. Uh, the subject name, I think, for the NPTEL course is this machinery for diagnosis and signal processing, something like that. So you can also learn something from NPTEL lecture. I think the link also I have mentioned here. Online video lecture available at NPTEL. This. Okay. So this course mainly focused on some other techniques also. Okay. So we will also discuss the other techniques, like other techniques are there. Some vibration and noise monitoring, beer debris analysis, oil analysis, okay, thermography, acoustic emission, ultrasonics, eddy current. Okay, these are other techniques, but the main technique that we will focus on this, the vibration analysis. Okay, vibration. Okay, if you talk about the random vibration, that means we are dealing with statistical parameters. Okay, like this RMS value, peak value, crust factor. Okay, standard deviation, like this. So this is something that I think in one of the subject you have studied that what is RMS and this. Now we will discuss on further for the purpose of our application. Okay, so in our application, how to deal with these terms and instrumentation, that because the random vibration is coming from the okay machines, so we have to capture the data. Some experimentation is required. Okay, like in our vibration lab. Okay, one is the that that instrument is there, but the accelerometer is the main things. So we capture the vibration using accelerometer, like this. Other transducers also we will discuss. Okay, why the accelerometer is more important, so will this we will also discuss. Data acquisition, how to okay acquire the data, record the data. Errors in the measurement, transducers. Okay, so different transducers like accelerometer, okay, sound level meter, and other transducers also we will discuss. And in signal processing parts, so we will see the sampling rate, okay, signal analysis, that wavelet transform, Fourier transform, okay, Fourier series, something like this. This is something about the signal processing techniques. And in the last, machinery fault diagnosis. Okay, so fault, something, the unbalance, cracks, spalling, looseness. Okay, these are the some faults, okay, that is in the machines presents, like a bearing, gear, fan, blower, pump. Like these are the machines, and also we will do some failure analysis. Okay, and these are the books. Okay, so something, this is that RAW, the Handbook of Condition Monitoring, Fault Diagnosis Application, Vibration Based Condition Monitoring, Rendall. This is only focused on the vibration based condition monitoring. Condition monitoring means just about the fault diagnosis is one part of condition monitoring. Okay, in condition monitoring there are different other areas also there, but fault diagnosis generally focused on the particular fault. So vibration based condition monitoring, this is Randall, RB Randall. Okay, this is a very famous professor. I think in Australia. He is in Australia in somewhat, and then many research papers they publish. He published many research papers, and with his PhD scholars and other professors. Okay,
in one of the conference, in Manchester, UK. Okay, when I went there for presenting my research paper, so I met him. Okay, so actually he is very aged person and just about to retire, but mainly the fault diagnosis. Okay, vibration based fault diagnosis. He did a lot of work. Okay, on that, and published a number of papers. You can search his profile, Randall. Okay, so very famous professor in this field, and this subject actually is totally for the research purpose, and in academics it is for research purpose, but in industries, okay, in any industry, if there is some maintenance there, okay, everybody is taking some, okay, data in the form of vibrations, and if an engineer is able to analyze that vibration, okay, then only you can find the faults. Okay, so if we talk about the diagnosis, so can anyone tell me about the what is the diagnosis? कोई अगर बता सके मुझे तो. ओके, चलो फॉरगेट अबाउट डायग्नोसिस. अगर हम ये कहें कि आपको फीवर है, तो आपको कैसे पता चलेगा कि आपको फीवर है? सर बॉडी गर्म हो जाएगी तो. बॉडी गर्म हो जाएगी तो कैसे पता चलेगा बॉडी गर्म हो गई? सब फील भी होगा और थर्मोमीटर से मेजर करेंगे टेम्परेचर. थर्मोमीटर से मेजर करेंगे आप ना. टेम्परेचर जो है वो कुछ मींस यहाँ पे जो पैरामीटर हो गया फीवर को चेक करने का, वो क्या हो गया कि टेम्परेचर आपने मेजर किया तो आपको पता चल गया कि इसमें फीवर है, हाई टेम्परेचर हो गया है. ठीक है, तो हमने जज कर लिया टेम्परेचर से कि इसको फीवर है. मशीन को फीवर हो जाए तो There are some instruments. सर उसको चेक करने के लिए भी कुछ इंस्ट्रूमेंट होते हैं. तो उसके क्या टेम्परेचर होंगे? मैं जस्ट आपसे पूछ रहा हूँ, मशीन को फीवर हो गया है, तो वो टेम्परेचर नापने के लिए आती है ना वो वेव जो. हाँ, वहां पर भी टेम्परेचर नापने के लिए क्या होगा? थर्मोमीटर? नहीं तो यस, वहां पर भी थर्मोमीटर टाइप का इसको गेज लगी होगी. Mainly thermometer is something the process. Okay, so अगर मशीन को फीवर हो गया तो आप उसका भी टेम्परेचर देखेंगे, है ना. आपको कैसे पता कि अब मशीन को फीवर है? सर आपका तो आपको पता है कि वो 100 फ़ारेनहाइट के ऊपर चला गया तो आपने कहा फीवर हो गया. सर प्रॉपर वर्क नहीं करेगी वो मशीन. प्रॉपर वर्क एकदम से हम नहीं समझ सकते अगर उसको फीवर हो गया है तो, क्योंकि जैसे ही आपको फीवर हो जाता है, क्या आप काम करना, मतलब आपका प्रोसेस होना बंद हो जाती है? सर मतलब सही ना मशीन काम जो वैसे करती थी जब सही थी. काम तो चल रहा होगा बट कुछ दिनों बाद प्रॉब्लम हो जाएगी. यस सर. तो मशीन में भी यही है कि उसका आपने टेम्परेचर सपोज देखा और वो एक लिमिट, अब वो लिमिट क्या है इसके लिए पूछ रहा हूँ कि मैं मशीन की लिमिट क्या है. आदमी की लिमिट तो आपने देख ली, इसी तरह से आपको एक मशीन की लिमिट भी डिसाइड करना पड़ेगी और फिर मॉनिटर करना पड़ेगा, उसकी कंडीशन को मॉनिटर करना पड़ेगा. कंडीशन मीन्स उसकी यही कंडीशन कि उसका टेम्परेचर क्या है मशीन का, 40 डिग्री से सेंटीग्रेड पे चल रही है कि 100 डिग्री सेल्सियस पे
है या फिर 200 डिग्री सेल्सियस उसका टेम्परेचर है, कितना टेम्परेचर है जो आपने डिजाइन किया है कि इतने टेम्परेचर पे ये मशीन वर्क करती रहे। इससे ऊपर अगर टेम्परेचर हो जाता है तो आपको कुछ एक्शन लेना पड़ेगा, या तो मशीन को शट डाउन करना पड़ेगा या फिर कुछ कूलेंट या जो भी है वो आपको यूज करना पड़ेगा। यस सर। ठीक है, चलिए ये तो टेम्परेचर मॉनिटरिंग की बात हो गई। ये भी आपका फॉल्ट डायग्नोसिस के उसमें आएगा कि किस तरह से हम टेम्परेचर मींस कंडीशन मॉनिटरिंग में ही ये टेक्निक आएगी कि हम टेम्परेचर मॉनिटर करें। अब अगर आपको कोई और कोई दूसरी बीमारी हो जाती है, कुछ अदर कह सकते हैं, इतनी सारी बीमारियां होती हैं, तो उसको डॉक्टर कैसे डायग्नोज करता है? लाइक ब्लड टेस्ट करके सर। अलग अलग होते हैं, सीटी स्कैन, एमआरआई, यस, हार्ट सीटी की। स्कैन किया है, एमआरआई किया, RT-PCR। आरटीपीसीआर किया, ब्लड टेस्ट किया। ब्लड टेस्ट में ही आपके कितने सारे जो है अंदर के शरीर में जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो आइडेंटिफाई, और आपका हीमोग्लोबिन कम हो, है ना, और भी कई जितनी सारी आपकी बीमारी हैं वो सब ब्लड टेस्ट से भी बहुत सारी हो जाती हैं। इसके अलावा कोई अगर और फिजिकल टाइप की कुछ डिफेक्ट आ जाए, फॉल्ट आ जाए आपके शरीर में, तो वो उसके लिए कुछ अलग कुछ स्कैनिंग होगी या कुछ जो भी है मेडिकल फील्ड में। अपन इतना उसमें नहीं गए हैं कि एक एक चीज हमको पता हो कि कैसे वर्क करती है, बट हमको ये पता है कि डॉक्टर कहीं ना कहीं कुछ टेस्ट आपको लिखेगा, लेबोरेटरी टेस्ट, और उसमें वो फिर जो भी रिपोर्ट आएगी उसके हिसाब से बताएगा कि आप में कौन सा फॉल्ट है। क्या आप एक डॉक्टर के पास गए, आपने बोला मुझे शायद कफ है, या आपने बोला कि कुछ ब्लड टाइप का कुछ आ जाता है मुझसे जब मैं कुछ खांसता हूँ कुछ करता हूँ, तो क्या वो जितने टेस्ट हो सकते हैं सारे टेस्ट करेगा, या फिर उसको पता होगा कि इसको ये वाली प्रॉब्लम है तो मैं ये वाला टेस्ट करूँ? सर उसको पता होगा कि जो प्रॉब्लम है उसका ही सिर्फ टेस्ट करवाएंगे वो। हाँ, उसका ही टेस्ट करेगा वो। ऐसा तो है नहीं कि जितनी उसके पास हॉस्पिटल में सारी चीजें हैं उसने कहा एक काम करो, सारी सारी लेबोरेटरी के सारे इंस्ट्रूमेंट का यूज कर लो, है ना। करने के लिए कर सकते हैं बिल्कुल, बहुत अच्छे से आप पता कर सकते हो फिर कि कौन सा फॉल्ट है आप में, लेकिन अननेसेसरी हो गया वो, है ना। आपकी कॉस्ट इंक्रीज हो जाएगी उस सब चीजों से। तो आप अगर एक्सपर्ट हैं तो आप क्या कहोगे कि ये वाला टेस्ट ले देता हूं मैं, ये वाला टेस्ट आप करा के लाओ, यानी कि एक एक्सपर्ट चाहिए। अब अगर मशीन में कोई फॉल्ट है, अब मशीन तो ये कह भी नहीं पा रही कि मुझे ये वाला फॉल्ट आ गया, मैं ये बीमारी हो गई, यस सर। तो आप अब वहां पे जो डॉक्टर की जगह एक इंजीनियर बैठा हुआ है, वो फिर कौन सा टेस्ट करे उसका? टेस्ट बहुत सारे होंगे, जैसे मैंने बोला आपको कि टेम्परेचर मॉनिटरिंग हो गया, एक आपका बियर डाइवरीज एनालिसिस हो गया, ऑयल एनालिसिस हो गया, जैसे कि हम ब्लड का एनालिसिस करते हैं, ब्लड सैंपल लेके, ऐसे ही हम मशीन का ऑयल निकाल के उसको ऑयल का एनालिसिस करते हैं। तो जो जो ऑयल से चीज़ें पता चल सकती हैं वो हम उससे बता सकते हैं। कुछ उसमें बियर डाइवरीज आ गई, कुछ पार्टिकल्स आ गए अगर उसके ऑयल में, तो लगेगा कि कुछ बियर एंड टीयर हो रहा है कहीं गियर में, गियर बॉक्स में अंदर, है ना। तो अब एक मेंटेनेंस इंजीनियर को कह लो या फिर वहां पे जो एक इंजीनियर है इंडस्ट्री में, वो कौन सा उसमें टेस्ट करे, है ना। तो ये प्रॉब्लम इंडस्ट्री में भी है
और जितना जो एक्सपर्ट होगा वो उतने जल्दी फॉल्ट का एनालिसिस कर लेगा कम से कम पैसे में। एक तो ये है कि आप सारी चीजें कर डाली, सारी सारी मॉनिटरिंग कर डाली, है ना। और एक ये है कि आप पीरियोडिक टाइप मॉनिटरिंग करते रहो, पीरियोडिक मेंटेनेंस उसका करते रहो कि हर एक पर्टिकुलर आवर्स पर या पर्टिकुलर डे में या पर्टिकुलर वीक में या पर्टिकुलर मंथ में, जो भी है आप उसके डेटा को देखते रहें। लेकिन अगर ये पूरा सेटअप आप लगाते हैं तो दैट विल कॉस्ट यू मींस हाईली, क्योंकि आपको ऐसा पूरा सिस्टम जनरेट करना पड़ेगा, वो सिस्टम की कॉस्ट होगी। तो ये सब चीजें हम डिस्कस करेंगे कि मशीन में फॉल्ट अगर आता है, आता ही है, आप इंडस्ट्री में जाएंगे तो एक बार आपने डिजाइन कर ली, मशीन डिजाइन हो गई, इंस्टॉलेशन हो गया मशीन का, देन क्या वो मशीन अब ठीक है, हमने इंस्टॉल कर दिया तो क्या हमारा पर्पस पूरा हो गया? पर्पस पूरा नहीं हुआ, क्योंकि अभी उसको एक रिलायबिलिटी है उसकी कि इतने साल तक ये विदाउट फेलियर वर्क करना चाहिए। और आपने जो कहा वो जनरली नहीं होता है, वो बीच में कहीं ना कहीं कोई फॉल्ट आ जाता है। एक बोला कि एक ह्यूमन की लाइफ कितनी है, अराउंड बोल दिया कि 80 ईयर्स है या 70 है, तो इसका मतलब ये तो नहीं कि हम उसको 80 साल तक देखें ही नहीं। अब बोले 80 साल तक तो नहीं मरेगा, 80 साल तक बीमारी नहीं होगा, यस सर। लेकिन वो तो बीच में ही चला गया, 30 साल में चला गया, 2 साल में चला गया, 8 में चला गया, है ना। तो मशीन आपने बना दी है, सब चल रही है, कनेक्शन मेरा हट गया क्या? नहीं सर। ओके। तो कहीं ना कहीं मशीन में जो फॉल्ट आ गया उसको देखना, और जो कैटास्ट्रोफिक फेलियर है आपका, अचानक कोई फेलियर अगर हो जाता है तो उसको रोकना, ये उस मेंटेनेंस इंजीनियर की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाएगी, और उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि उसने कितने अच्छे से उसने ओके कितने अच्छे से उसने वहां पे एनालाइज किया। तो ये सब इस सब्जेक्ट में है। और कौन सा फॉल्ट आ गया इसमें, क्रैक आ गया कि इसमें इस स्पॉलिंग हो गई, या मिसअलाइनमेंट है, या गियर में फॉल्ट है, कि बेरिंग में फॉल्ट है ना। तो इतने सारे जो फॉल्ट आएंगे, मशीन तो चल रही है, अभी आपको देखने से नहीं लग रहा है कि मशीन में कोई फॉल्ट है, मशीन तो चल रही है, बट उसका वही हमको मॉनिटरिंग करनी है। मॉनिटरिंग की टेक्निक बहुत सारी हैं, है ना, वाइब्रेशन एनालिसिस है, नॉइस एनालिसिस है, और भी अदर टेक्निक्स हैं दैट वी विल डिस्कस। ओके, सो दिस सब्जेक्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप इंडस्ट्री में जाना चाहते हैं तो बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और इंडस्ट्रियल में नहीं जाकर अगर आप रिसर्च में कहीं जाते हैं तब भी बहुत इम्पोर्टेंट है, बिकॉज कई पीएचडीज ओके इस पे हो रही हैं, और कई कंसल्टेंसीज इस पे होती हैं अगर आप एकेडमिक में रहते हैं तो, ठीक है, इंडस्ट्री से कांटेक्ट अगर आपका रहता है तो आप कहीं ना कहीं इसको, लेकिन इसमें एक इंस्ट्रूमेंटेशन चाहिए कि आपको जनरली जो वाइब्रेशन बेस्ड है उसके लिए तो वाइब्रेशन के इंस्ट्रूमेंटेशन चाहिए, दूसरी टेक्निक है तो उसके लिए भी आपको इंस्ट्रूमेंटेशन चाहिए, ठीक है। सो वी विल डिस्कस दीज थिंग्स एंड हाउ टू डायग्नोज द फॉल्ट। सो आई थिंक द टॉपिक इज क्लियर, मशीनरी फॉल्ट डायग्नोस्टिक्स क्या मतलब हुआ आप बताइए जरा, हम क्लोज करते हैं आज का लेक्चर। क्या मतलब हुआ बताइए। सर हमें मतलब जैसे कोई प्रॉब्लम होती है उसको डायग्नोस करना है मशीनरी कम से कम कॉस्ट में, एंड
कम से कम प्रोसेस, मतलब उसमें उसको देखे कम टाइम में। ओके, डायग्नोसिस मतलब क्या हो गया? सर किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करना। सर किसी प्रॉब्लम का एनालिसिस करना है, यानी बीमारी का पता लगाना। मींस फॉल्ट का ना। जी और सर। मशीन के लिए बीमारी तो बोलेंगे नहीं, ये तो जस्ट मैं समझाने के लिए बोल रहा था कि मशीन बीमार हो गई। मशीन के लिए हम ऐसा तो नहीं बोलेंगे मशीन बीमार हो गई, ठीक है, मशीन में फॉल्ट आ गया है, हम ऐसा बोलेंगे। ठीक है, वो जस्ट मैं ह्यूमन को उसके साथ कनेक्ट कर रहा था ताकि आप फील कर सकें कि जैसा हमारी मशीन वर्क कर रही है ऐसे ही वो मैकेनिकल मशीन भी ऐसे ही वर्क करती है, उसमें भी ऐसे ही फॉल्ट आते हैं, उसको भी ऐसे डायग्नोस करते हैं। ओके, सो जनरली डायग्नोसिस मीन्स आपको फॉल्ट का पता लगाना और उस फॉल्ट को ठीक करने के लिए भी कुछ इम्प्लीमेंटेशन करना। ओके, दैट इज फॉल्ट डायग्नोसिस। यस सर। ठीक है, तो ये सब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको हम डिस्कस करेंगे। ओके, मंडे ऑनवर्ड। ओके, और कोई डाउट इसमें कुछ? सर सर ये सिर्फ मतलब मेंटेनेंस फील्ड में ही होगा इम्प्लीमेंट, या फिर किसी और फील्ड में भी कर सकते हैं? देखो, अगर आपका एक बार मशीन बन गई और वो इंस्टॉल हो चुकी है, ठीक है, फॉल्ट की बात हम तभी करेंगे यस सर। जब वो मशीन वर्किंग में है। और वर्किंग कहाँ पर होगी? जहां वो लगी है, जहां इंडस्ट्री में लगी हुई है ना, जहां इंडस्ट्री में लगी है वहीं पे हम फॉल्ट चेक करेंगे। तो यस सर। मेनली, हाँ, तो मेनली आपका अगर देखें तो मेंटेनेंस में उसका मेनली वर्क है। बाकी अदर फील्ड में रिसर्च एंड R&D जो है वहां पे होता है, तो वहां पे भी ऑब्वियसली आपको मेंटेनेंस टीम के साथ कोऑर्डिनेट करना पड़ता है। जो मेंटेनेंस इंजीनियर होगा वो आपको डाटा और सब चीज़ें देगा। फिर आप जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट होगा उस कंपनी में, वहां जाके आप कहीं उसको एनालाइज कर रहे होंगे, जो सिग्नल प्रोसेसिंग है वो लगा रहे होंगे। यस सर। एक दूसरे से कनेक्टेड जितनी भी फील्ड्स हैं आपकी, प्रोडक्शन भी वहां पे चल रहा होगा, तो वो सारी चीजें एक दूसरे से कनेक्टेड होंगी। ठीक है, आपने मेंटेनेंस सही से नहीं किया, वहां पे आपने फॉल्ट भी नहीं बता पाया, तो प्रोडक्शन आपका ब्रेक डाउन हो जाएगा वहाँ, यस सर। है ना। तो सारी चीजें आपको कनेक्टेड होंगी वहाँ। तो मेनली जब ये जो फॉल्ट डायग्नोसिस है, मतलब मशीन आपकी वहाँ जो इंडस्ट्री में वर्क कर रही है उसको रोकना। क्योंकि देखो कई बार क्या होता है कि एक वहाँ पे ब्रेक डाउन तो आएगा, पर्टिकुलर मेंटेनेंस होता है, तो उन्होंने देखा कि हम एक साल में मेंटेनेंस करते हैं तो पूरा शट डाउन कर देते हैं और उसके बाद वो पूरी क्लीनिंग और जो भी है वो सब चीज़ें कर लेते होंगे। लेकिन बिटवीन देम जो आपको नेक्स्ट शेड्यूल आपका था कि एक साल बाद या एक महीने बाद हम उसका जो मेंटेनेंस करने वाले थे, उसके पहले ही मशीन अगर खराब हो जाती है तो वो कौन बताएगा? क्योंकि अगर बीच में खराब हो जाती है तो फिर वो आपको शेड्यूल वाला था तो उसमें आपने ठीक है एक महीने तक मेंटेनेंस चला उसका, तब तक मशीन वर्किंग नहीं रही, प्रोडक्शन बंद है। लेकिन अगर वो उस मेंटेनेंस शेड्यूल के पहले ही ब्रेक डाउन हो गया तो अननेसेसरी आपको एक महीने की जगह 2 महीने तक मेंटेनेंस चलने लगा और फिर जो आपका लॉस होगा वो बहुत बड़ा लॉस हो गया। यस सर। अचानक अगर मशीन आपने किसी का वेंडर आप ले चुके हो कि इसको इतने प्रोडक्ट बना के हमको देना है और आपकी मशीन ही ब्रेक डाउन हो गई बीच में, तो आप उस टाइम ड्यूरेशन में नहीं दे पाए, तो अल्टीमेटली वो कॉस्ट आपको ही देनी है। तो आप जितना प्रॉफिट लेना चाह रहे थे तो वो तो लॉस में चला गया। तो उससे अच्छा होगा कि आप उसका फॉल्ट जो है ईयरली फॉल्ट डिटेक्शन कर लें, मशीन फेल होने के पहले ही आप ये डिटेक्ट कर लें, ताकि उसके अकॉर्डिंग फिर आप प्लानिंग कर सकें कि अब इसका मेंटेनेंस इतने जल्दी करना पड़ेगा, तो पहले से ही एक महीने बाद तक ही ये मशीन चल पाएगी क्योंकि इसमें फॉल्ट आना स्टार्ट हो गया है। तो वो जितना भी रिक्वायरमेंट है आपकी वो आप तैयार करके रखो कि जैसे ही वो एक महीने के पहले ही हम इस मशीन को शट डाउन करके और इसको 15 दिन में अंदर फिर से ठीक कर देंगे। तो प्रोडक्टिव मेंटेनेंस जो बोलते हैं उसको भी इसमें वर्क करेगा। यस सर। ठीक है, और कोई डाउट?
चलिए, ओके थैंक यू सर। ओके।